we'll great. Thank you. Thank you, Prantik. So we'll start sharp in 7 minutes. 7 मिनट में आपको क्या करना है? तो दो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी बिछड़े फ्रेंड्स हैं, काफी सालों वाले फ्रेंड्स हैं, काफी गहरे दोस्त हैं यहाँ पे. So you can introduce yourself with your name, your city, and the profession that you're into. तो ये आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इवन इफ यू नो दैट की पीपल नो यू वेल, स्टिल यू कैन इंट्रोड्यूस. दैट इज अ गुड थिंग, so that even other people will be knowing. And request everyone to switch on the videos. Sunday morning, I know. Yes, so anybody can start. Hi. Yeah. Okay, Hi, go ahead. everyone. I am Dipali and I'm from Nasik. I am an entrepreneur and I have a recruitment agency and a training academy. And yeah, here I am today, Sunday morning, to learn new things. Thank you. Great, great. Welcome, Dipali. Yes, Kaushik. Yeah, good morning, everyone. My name is Kaushik. By qualification, I'm a chartered accountant. Now, I am an entrepreneur with respect to personal finance. I help people with money management. And I am from Kalyan, Mumbai. So, and I have been closely associated with Prantix, and I've been learning and using these techniques every day. So, thank you so much. Thank you. Thank you, Kaushik. Can I go, ma'am? Yes, please. So this is Shahnawaz Salim. I'm a Zaipreneur, a second generation food grain merchant with 27 years of business wisdom, a seasoned technical analyst. After building legacy wealth and cracking the market code, I now guide a new age traders to create lasting wealth with clarity and confidence. I don't just trade, I train, I hire, and I inspire. Thank you. Wow, I love the word inspire. Very good. Yes. Who else? Pramil? नमस्ते मैम. Yeah, Umendra. Okay, go ahead. मैं उमेंद्र सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से. हाँ जी. और मेरा गवर्नमेंट सप्लाई का काम है जी. Okay, great, Umendra ji. Welcome. Yes, Pramil. Hi, good morning, everyone. I'm Pramil Chaudhary, basically from born and bottom in Jodhpur, Rajasthan. Right now in Bangalore, I'm a full-time trader. I'm doing trading on intraday and even swing as well. And this is my full-time journey. Wow, awesome. Welcome. Yes, we have another 4 minutes to go. Hi, good morning, everyone. Hello. Good morning. Yes, Rupali. This is Rupali Shevde, nutritionist and fitness coach. I work from Pune online and offline mode. My specialization is in working DNA-based transformation for all age group. And I'm here to see you all. It's been a long time, no sessions ended. And I must say thanks to you, Prantik, and everyone for whatever learning. जब जितना भी अभी तक सीखा है वो implement कर पाई. I'm so happy. I just wanted to see you all. That is the reason I'm here and I have time today. So really happy to see you and attend this session. Just a revision kind of a thing. Awesome. Welcome. Happy to see you too, dear. Great. Who else? Good morning. I am Basanta from Bangalore. I create wealth for my customers through mutual funds. Thank you. Beautiful. Short and sweet, Basanta, as usual. Ah, Sannata. सन्नाटा है अभी. यस. हाँ, क्योंकि तूफान अभी स्टार्ट आने वाला है ना 3 मिनट के बाद. हेलो रूपा. हेलो नीलेश. यस, प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए. Okay, so I am Nilesh Patil from NSP Multis LLP. We are specialized in website designing and web application development. So I have experience more than 14 years plus. We develop 1400 plus websites till date. Wow, And that's amazing. thank you very much. Thank you तो Nilesh. बहुत दिनों के बाद मिलना होगा अभी. Yes, yes. Great. Thank you. Thank you, dear. Yes, Vedant, would you like to go? Yes. Hello, ma'am. Good morning. My name is Vedant Fartare and I do business with Herbalife Nutrition. I'm a wellness coach.
and I have attended Prantik sir's training, which you gave with Amol sir, for the same Yeah. thing. Yeah, and now when I saw this event, I just wanted to register and to again grasp everything. So thank you so much. Absolutely. Absolutely. Great. Welcome, Vedant. Thank you so much. Yes, Shanaya. So good morning, ma'am. So good to see you back because same. I'm Good. also from Herbalife Coach and प्रांतिक सर का सेशन हम लोगों ने सुना था वर्ल्ड ट्रेन रिट्रीट था तभी. So हाँ, हाँ. I think so more than 1 year. But trust me, मैम, ये मैसेज कन्वे करना प्रांतिक सर को बिकॉज उसके बाद मैंने मेरे बेटे को भी बिठाया था ऑनलाइन सेशन जो होते हैं अपने और ही इज जस्ट लाइक थर्ड स्टैंडर्ड में है बट इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर अस. तो वो जो ह्यूमन बिहेवियर पर्सनालिटी पता चलता ना इट्स रियली वर्किंग फॉर अस पर्सनली एंड प्रोफेशनली. तो ये मैसेज जरूर देना शायद ही इज लिसनिंग. सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल लाइफ लॉन्ग ग्रेटफुल फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you so much, Okay. Shanaya. Great. All right. It is already 10:07. There are more people joining in though. So before प्रांतिक सर को मैं दे दूं, मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस आप सबको दे दूं. प्लीज अपने वीडियो स्विच ऑन कीजिएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टू वेज रहने वाला है. क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये नॉर्मल इंट्रोडक्टरी नहीं है बट इट इज ऑल अबाउट द मनी पार्ट दैट प्रांतिक इज गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिएगा और जितना आप इंटरेक्टिव कर सके, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपके लिए ही ये फायदा रहेगा बिकॉज इट इज टोटली अ डिफरेंट इंट्रोडक्टरी सेशन, नॉट अ नॉर्मल वन. ओके, सो ये पूरा सेशन हिंदी और इंग्लिश में रहेगा. इन केस अगर आपको कोई एक लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी या इंग्लिश, तो प्लीज पूछिएगा. क्वेश्चंस जितने भी आपके रहेंगे प्लीज लिख के रखिएगा बिकॉज क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 11:30 तक का टाइम है, 1.5 घंटा है. तो हम चाहेंगे कि हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो टाइमली डिलीवर करें और उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेंगे. यस, ऑल आर विथ मी. ग्रेट, थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको इसमें किसी और को भी अटेंड करना है कुछ है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली एंड आई कैन सेंड द लिंक टू देम ऑल्सो. ऑल राइट, ओवर टू यू प्रांतिक. Great. Thank you so much. Am I audible? Clear enough? Yes. Okay, Yes, great. sir. Thank you so much. Hello, Gratitude. Prantik ji. No. Thank you so much. Thank you so much for being here. And मैं सुन रहा था. Thank you, Shanaya. I received the feedback well. Thank you. And gratitude early in the morning. Thank you so much for being here. And I'm sure I'll ensure that ये आपके लिए worthwhile रहेगा. So as usual, sit with a pen and diary. Lot of notes should be taken. ये भले ही हम इसको introduction session बोल रहे हैं because it's a very small session. बट आपको आपको अपने लाइफ को, अपने मनी लाइफ को देखने का पूरा नजरिया अलग होने वाला है. मैं नहीं बोलूंगा चेंज होगा बट बहुत अलग रहेगा. ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हम समझेंगे, सीखेंगे. ओह, ये मैंने सोचा नहीं था. ऐसा वाला आहा मोमेंट्स भी आ सकते हैं. सो माय रोल इज टू एंश्योर दैट आपका संडे मॉर्निंग ये 90 मिनट आपका वर्थवाइल रहेगा. दैट्स माय प्रॉमिस. एंड उस बीच में लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज मनी. मनी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, बहुत सारा कंफ्यूजन भी जनरेट करता है, बहुत सारे डाउट जनरेट करता है. सो बहुत सारी चीजें हैं. मैंने इस एक टॉपिक को लेकर देखा हुआ है. मनी एक ऐसा टॉपिक है जिसके जिसके बारे में हम बचपन से अनजाने में भी हमारी से मुलाकात हुई है, डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट किए हैं, साइलेंटली बहुत बार देखे हैं. बट समहाउ with lot of interviews and lot of understanding people have never understood what money is all about. Okay, unfortunate part वहां पे आ जाता है कि somehow वो एहसास नहीं हो पाए कि what actually is money. So I'm taking a responsibility, a small responsibility of helping you understand what money is all about. And आपको उसमें realize भी होगा कि मनी को किस एंगल से एक्चुअली देखना चाहिए. एंड उस बीच में you will understand my story also, why I am capable enough to talk about it. Okay, so मेरी स्टोरी के थ्रू बीच बीच में हर एक स्टांस पे आपको पता चलेगा कि yes, I have gone through that. And in short अगर मैं बोलना चाहूंगा, I have gone through what you're going through. Okay, all of this, all of those, जो भी आप सोच सकते हो. Right? So now, अभी जहां पे आप बैठे हो, क्या आपके पेरेंट्स आपके कमरे में है क्या? नहीं है. आपके दूसरे कोई फ्रेंड्स
या दूसरे कोई रिलेटिव्स आपके रूम में है क्या? नहीं है। फिर भी No. जो आपके कमरे में नहीं है, फिर भी आप उनको बोल रहे हो, उनके बारे में बोल सकते हो, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई रिलेटिव, दिस इज माई अंकल, दिस इज माई फ्रेंड। ओके, क्यों बोलते हो? बिकॉज भले ही वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मे बी योर पेरेंट्स मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ टुडे, लाइक माई फादर इज नो मोर अलाइव, okay, but still I look at this picture and say that he is my father, because every relationship we live in our thoughts. हम अपने विचारों में सभी रिश्तों को जीते हैं। ओके, वो इंसान जिंदा हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड उसी प्रकार से मनी के साथ जो रिलेशनशिप है, वो भी हम अपने जहन में, अपने विचारों में ही जिंदा रखते हैं। वी डोंट लिव रिलेशनशिप फिजिकली, we live all the relationship in our thoughts. So based on this, okay, I'm going to ask you the first question. Write the answer in the chat box. Okay. What emotions, मैं खासकर सवाल सुन लीजिए, what emotions come to you when you think of money? Emotions क्या क्या आते हैं आपके जहन में जब आप पैसे के बारे में सोचते हो? Put in the chat box. Power, freedom, worry, important. Go with the feeling. Anxious, happiness, luxury, scarcity, abundance, joy, security, grateful, happy. Oh, brilliant. Wow. Comfort, fear, happiness, freedom, security. Oh, such amazing. Thank you so much. Thank you. Shopping, love, exchange of money, freedom. Oh, wow. अब आप सब पढ़ पा रहे हो? मैंने सिर्फ एक ही शब्द पूछा है कि आप मनी को लेकर क्या इमोशन क्रिएट करते हो, बट दिस वन वर्ड हैज जनरेटेड सो मेनी इमोशंस। सो अगर आप देखोगे, nobody said any number, everybody experienced an emotion. वो फ्रीडम भी बोल रहे हैं, वो स्केर्सिटी भी बोल रहे हैं, कोई हैप्पीनेस भी बोल रहा है, कोई उसको एक्सपीरियंस भी बोल रहा है। सो आप देख सकते हो कि एक वर्ड कितने इमोशंस पैदा करता है, विच वेरी क्लियरली सेज दैट वी हैव डिफरेंट कनेक्शन, वी हैव डिफरेंट इमोशंस विद दिस वर्ड मनी। ओके, और जैसा हमारा कनेक्शन, जैसा हमारा रिश्ता उस पैसे को लेकर है, वैसे हमारे इमोशंस है। कोई एक हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में जैसे ही सोचते हैं या फिर उससे जैसे मिलते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, वाह वाला फीलिंग आता है। सेम उसी प्रकार का एक इमोशन, उसी प्रकार का एक फीलिंग पैसा भी जनरेट करता है। जब ये पैसे का जिक्र होता है, कोई उसमें फ्रीडम महसूस करता है, कोई वाह महसूस करता है, और कोई उसी पैसे के बारे में लेके स्केर्सिटी या फियर महसूस करता है। So money is never about numbers. It is all about your energy. It is all about your emotions. Emotions भी अगर हम बात करेंगे, it is energy in motion. यानी कुछ ना कुछ एक फीलिंग, कुछ ना कुछ अंदर मूवमेंट होता है। सो ये पूरे प्रोग्राम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक करके आप लोग पार्ट समझोगे। एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट मनी। मनी, जैसे मैंने कहा, एक ऐसा टॉपिक है जो हमने बचपन से सीखा हुआ है, एंड हर बार वो एक अलग अलग इमोशन अलग अलग स्टेजेस पे पैदा करता है। डू यू ऑल एग्री दैट हमारे इमोशंस हमारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं? पुट इन द चैट बॉक्स यस, राइट। यानी कि अगर हम खुश हैं तो हमारे एक्शन खुशी वाले होंगे, अगर हम दुखी हैं तो हमारे एक्शन नेगेटिव होंगे। सो अगर हमारे इमोशंस हमारे एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस विल गिव बर्थ टू नेगेटिव एक्शंस, and negative actions will give birth to negative results. इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। इमोशंस लीड टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू रिजल्ट। EAR, इमोशन लीड्स टू एक्शन, एरो एक्शन, एक्शन लीड्स टू रिजल्ट, EAR, उसको याद रखिएगा। तो मैंने जैसे सुना, काफी सारे लोग ट्रेडिंग में है, राइट, स्टॉक ट्रेडिंग में है, वहां पे इमोशन का सबसे बड़ा रोल होता है। इफ यू आर ट्रेडिंग इन एंजाइटी, अगर आप एंजाइटी में ट्रेड कर रहे हो, आप देखोगे उस दिन हमेशा आप एक गलत स्टॉक उठाते हो, राइट मिस्टर प्रमित, यू एग्री टू दैट? राइट। सो जैसे आप एक एंजाइटी में रहते हैं, आज तो कमाना ही पड़ेगा, जरूरत है, जब आप उस इमोशंस में रहते हैं एंजाइटी वाले, आप गलत ट्रेड उठाते हो, गलत ट्रेड जो है गलत रिजल्ट देता है। EAR, इमोशन लीड टू एक्शन लीड्स टू रिजल्ट। इट विल ऑलवेज बी इमोशंस। अगर आपको कुछ चीज बेचना है, आपका प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है, बट अगर आप एंजाइटी में आ जाते हो, आप डर में आ जाते हो, यार मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, सो आप डिस्काउंट में 50% डिस्काउंट ये सब लगा के आप बेच देते हो, क्योंकि
एंजाइटी आ गया या फियर आ गया। सो प्रोडक्ट की कीमत थी 2000, बट आपने 50% डिस्काउंट देके 1000 रुपए में बेच दिया, तो आपके अकाउंट में कितना आया? 1000 रुपया। 2000 आ सकता था, बट आपके इमोशंस ने आपके उस पैसे को कट कर लिया। सो इमोशंस विल कंट्रोल योर एक्शन विल कंट्रोल योर रिजल्ट। उसको याद रखिएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि मनी इज वन थिंग दैट वी हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड टू सिंस आवर चाइल्डहुड। पैसे के लेकर, पैसे हमको डायरेक्टली कोई सिखाया नहीं कि इस प्रकार से पैसे गिनते हैं, इस प्रकार से, नोबडी टॉट अस, बट समहाउ सबकॉन्शियसली हमने हमेशा पैसे के बारे में सीखा है अपने पेरेंट्स के थ्रू, किस तरह से वो बर्ताव करते थे पैसों को लेकर। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, डू यू एग्री टू दैट पॉइंट और नॉट? देख लीजिए। आपने देखा है कि वो बिल्स के बारे में कैसे डिस्कस करते थे बचपन से। घर में आर्ग्यूमेंट चले हैं पैसों को लेकर, पैसे का कभी भी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है पूछते थे तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम ध्यान मत दो। डिस्कशन हमेशा रहा है लैक ऑफ मनी। मैं चाह रहा था कि एक बड़े से टॉय आ जाए, या फिर मैं एक कोर्स करना चाह रहा था। मेरा एक पर्सनल स्टोरी है कि आई वांटेड टू डू एन अरीना मल्टीमीडिया कोर्स, इट वाज जस्ट 8000 रुपीज। ओके, उस वक्त आई वाज स्पोकन, नो वी डोंट हैव मनी, वी कांट अफोर्ड टू पे दैट। ओके, टीचिंग अस हाउ मनी इज हार्ड टू अर्न, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। जबकि कुछ लोगों के घर में, ओके, मैंने एक पॉइंट वो भी रखा है कि गुड डिस्कशन भी चले हैं। हैव यू ऑल एक्सपीरियंस दीज थिंग्स? राइट, कुछ लोगों के घर में गुड डिस्कशन चला भी होगा, और कुछ लोगों के घर में मेजरली तो टॉप 5 चला होगा। अब इससे हमारे अंदर क्या इमोशंस पैदा हुए? फियर आया, राइट, नेगेटिव आया, ग्रेट। ओके, सो जस्ट थिंक होकर व्हाट आई एम ट्राइंग टू लिंक। ये सारे डिस्कशन, ये सारी चीजें जो आपने देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, इट इज लिंकिंग टू वन ऑफ योर इमोशन। एंड इमोशन का याद रखिए, EAR। अब ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर एक मनी स्टोरी को पैदा करता है। हमारी एक अपनी कहानी बनती है। आपके पेरेंट्स की जो कहानी है वो है, बट अपनी एक कहानी बनती है मनी को लेकर। नाउ वी हैव अ न्यू स्टोरी अबाउट आवर लाइफ एंड मनी रिलेटेड इन आवर लाइफ। अब एक क्वेश्चनर होगा, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िएगा, वन सामने आंसर लिख लीजिए। यू हैव टू ओनली आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स। डोंट कॉपी द क्वेश्चन, डोंट बॉदर इवन ट्राइंग टू कॉपी द क्वेश्चन, बिकॉज वो टाइम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ट्रू या फॉल्स वो लिखते रहिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 1, इन माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन में ये सीखा हुआ है कि वी कांट अफोर्ड दैट। ये आपने बार बार सुना हुआ है आपके बचपन में। आपके डायरी में लिखिएगा, आपके डायरी में लिखिएगा, सो दैट आई वांट यू टू काउंट। ओके, नेक्स्ट जो है, व्हेन आई स्पेंट मनी ऑन माई सेल्फ आई फेल्ट गिल्टी और सेल्फिश। पुट इन योर चैट, पुट इन योर डायरी। थर्ड, my family and me have believed in past that rich people are arrogant and dishonest. Next question. While I was growing up, financial discussion at home were tense and avoided. In my home, saving was praised more than earning or enjoying. जब भी पैसा साइड में सेव करते थे, वाह वाह, खुशी होती थी। मेरे डैडी आज भी मुझे ये बोलते हैं। Right? I learned that helping others financially is noble than spending on myself. Okay. Next set of questions is, I sometimes sabotage good financial opportunity because I don't feel they are safe. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, बट मैं ये सेफ नहीं होगा करके मैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खो दिया हूं, गवा दिया हूं।
talking about money still feels uncomfortable and not so spiritual. I still hear my parents' voice in the head while making some good or big purchases. मैं कुछ भी ऐसे बड़ा खरीदने जा रहा हूँ, मे बी ब्रांडेड शूज, क्लोथ्स, ऐसा पीछे से आवाज अभी भी माँ की सुनाई देती है, इतना पैसा खर्च मत कर. Almost all are true. I worry that if I earn too much, something bad might happen or people will judge me a lot. अगर मैं अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से ज्यादा अमीर हो गया, so I'll be judged. I feel uncomfortable asking for money I deserve, whether it's my business, salary, or fees. And the last question is, when I see someone living luxuriously, a part of me feels they are lucky, and also it feels that नहीं वो deserve नहीं करते हैं, ये दो नंबरी का है. ओके, नाउ जो भी आपके आंसर आए हैं, कितने ट्रूज है कितने फॉल्स है, आप वो देख लीजिए. ओके, वो काउंट करके रखिएगा. जो जो क्वेश्चन के लिए ट्रू है, अब देखिए वो आपके अंदर आपका स्टोरी कैसे बिल्टअप हो रहा है. आई एम गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चंस अगेन, एंड अब क्या क्या अंदर इमोशंस आते हैं, अब देखते हैं. सो जिन जिस क्वेश्चन के लिए आपने ट्रू लिखा है, ये उसके लिए लागू होता है. अगर आपने सुना है वी कांट अफोर्ड इट, आपके अंदर वो स्टोरी बिल्ट हुआ है द फियर ऑफ लैक और लैक ऑफ मनी. इंडियन के लिए, राइट. सो जितने भी यस है उसके लिए. सो आपके अंदर एक स्टोरी बिल्टअप हुआ, देयर इज फियर ऑफ मनी और लैक ऑफ मनी. नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट इमोशन जो बिल्टअप हुआ कि जब भी आप अपने ऊपर स्पेंड के गिल्टी फील किए, सो आपका गिल्ट पैटर्न हुआ. सो एनीथिंग गुड आई डोंट डिजर्व, एंड इफ एनीथिंग गुड कम्स टू मी, मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं यकीन नहीं करता हूं, आई फील गिल्टी, नहीं यार आई डोंट डिजर्व इट बोलता हूं मैं. माई फैमिली हैज बिलीव दैट रिच पीपल आर एरोगेंट और डिसऑनेस्ट. सो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेल्थ एंड वर्च्यू हो गया. यानी कि अमीर बनना इज अ साइन ऑफ गुडनेस या साइन ऑफ बैडनेस. ओके, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ खराब करना पड़ेगा, ऐसा. सो कॉन्फ्लिक्ट एक स्टार्ट हो गया. सो नाउ यू आर नॉट वेरी श्योर कि अमीर बनना भी है कि नहीं बनना है. ओके, डिस्कशंस वर टेंस एंड अवॉइडेड. मनी इज इक्वल टू स्ट्रेस, दैट क्रिएटेड अ न्यू स्टोरी इन योर हेड. Savings for more praise, that means safety is more important than growth or expansion. Helping others, यानी कि sacrifice करना सीखो rather than receiving good. Okay, अगर receive हो रहा है तो मना करो, but देना पड़ रहा है, sacrifice कर लो. How many of you could relate? Relate हो रहा है? Okay, great. Now, next set of question. साबोटाज के यानी सेफ फील नहीं किए, अनहील्ड फियर, कुछ ना कुछ डर था. हम ये हमेशा सीखे हैं कि रिस्क लेना जरूरी है सो दैट यू ग्रो, बट वो सेफ्टी के चक्कर में हम इतने डरे हुए हैं कि हम रिस्क ले ही नहीं पा रहे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले पा रहे. अनकंफर्टेबल यानी कि कॉन्फ्लिक्ट विद मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. यानी कि बहुत बार ये सुना है कि भाई मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाओगे तो यू विल नॉट बी स्पिरिचुअल इनफ. पेरेंट्स परचेजेस जो चल रहा है, यानी कि इंटरनली देयर इज अ पेरेंटल कंट्रोल लूप चल रहा है. ओके, यानी कि दे आर स्टिल कंट्रोलिंग योर लाइफ. ओके, सबकॉन्शियसली. फियर ऑफ विजिबिलिटी, यानी कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इफ आई कम इन लाइमलाइट, वो सारी चीजें. ओके, आई डोंट डिजर्व, इट इज सेल्फ वर्थ का एक स्टोरी डेवलप हो गया है. एंड फाइनली इज believe that wealth is unfairly distributed. तो जितने जगह पे आपने yes 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 किया हुआ है, these are the some beliefs, some stories you have started to develop, and वो जो develop हुआ है, that created your new circle. Okay, the first circle is your first circle of money story. इसको हम A नाम दे रहे हैं. So now take 10 seconds, make a circle, उसको A नाम दीजिए. What has been your story? इससे गाइडलाइन लेके what is your story, your money story क्या है, आपके क्या बिलीफ है मनी को लेकर, इस प्रकार के फियर है,
which people are dishonest, वो feeling है, okay, sacrificing को जो भी है, take 10 seconds and write it down, okay, एक सर्कल बना के. ये तो सब कुछ है. हाँ हाँ, तो just copy it out, okay, जो 7-8 जो आपको मेन लग रहे हैं वो सब लिख लीजिए. Then you are going to have a breakthrough today. मैं बोला ना, you will understand money in a different way altogether, different light altogether. So this is part 1 we are going to learn, the money story. So ये सर्कल बहुत जरूरी है. If possible, draw on a new page, ताकि उस पेज में आप कुछ ना लिखो, okay? Because वहां पे और 2 सर्कल्स भी हम इंक्लूड करने वाले हैं. So preferably draw on a new page. Okay, some feedback. How is it going till now? You can put in the chat box or you can unmute and share. Got some insights? They are busy making the circle. Great. It's great going. Okay. आपने Now वापस let's. वो तार छेड़ दिया, पुराना सब तार छेड़ दिया आपने. मेरा काम ही वही है. That's my job अच्छा to है, do. अच्छा है, अच्छा है. हाँ, we Brain have. surgery without opening the brain. Yes, जरूरी है. And Prantik, Okay. जी. my daughter is also attending today, so I just thought I should have to with her today. अरे perfect. I mean, she will get to know a lot of things. What's her age today? Yeah, exactly. 21. 21. Okay, Right. she will get some good breakthrough about her money. Exactly. Now, इस बीच में काफी सारे लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं. So, who am I? I mean, what is my story? Why do I have the capacity to stand here and talk? So, you will let me talk about that also. I was born exactly like you were born. I was very small when I was born. And जब मैं पैदा हुआ था, I was born in a very middle class family. The reason I am middle class because my parents were middle class. Okay, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरे parents middle class और मैं rich class, नहीं हो सकता. So I am middle class because my parents were middle class. By the way, middle class बोलते क्यों है? You have any idea? मिडिल क्लास, मेरा रिसर्च ये बोलता है कि मिडिल क्लास हम अपने आप को क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमीर है नहीं और खुद को गरीब बोल नहीं सकते हैं, तो बीच में अटके हुए. सो दैट आर मिडिल क्लास. ओके, वेरी सिंपल. नाउ वी हैव वेरी सिंपल फॉर्मूला इन आवर फैमिली. ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 बोलता है बोझा पढ़ाई करो, लाइफ अच्छी हो जाएगी. सेकेंड स्टेप बोलता है कि जॉब ले लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी. थर्ड है इस लाइफ अच्छी हो जाएगी. तो ये 3 स्टेप्स हमको सिखाया गया था कि पढ़ाई कर लो, जॉब ले लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी. मुझे फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम था. आई वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज बिकॉज मुझे कोई लॉजिक दिख नहीं रहा था. आई हैड द पोटेंशियल बट मुझे लॉजिक नहीं दिख रहा था. पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में. बट मेरे घर में, okay, my father was a very learned man, but there was very stringent relationship with money. Okay, somehow, okay, very stringent relationship. My father had 17 degrees in medical science, 4 PhD, and 4 times presidentially awarded. But इनका एक बहुत, मैं आज खूबसूरत बोल रहा हूं, बट उस वक्त मेरे लिए था, ये बड़ा विचित्र नेचर था. He had money, but he was a giver. He used to give lot of people lot of money. स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सर हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं है, लाखों रुपए निकाल के दिए. ओके, कोई आ गया मांगने के लिए, सर हमारा घर डूब गया है, ये हो गया, उनको निकाल के दे दिया है. ओके, एंड ही हैड गिवन आउट सो मच ऑफ मनी. जब मैं मांगने गया, मुझे जब जरूरत थी, he had nothing left with him. So that's why I had developed a very stringent relationship with my father. I had developed a hate-love kind of relationship. Love है because father है, but hate ये है कि इनके पास मेरे लिए पैसे नहीं थे. Okay, so now understand that relationship that is happening in my family. The other parent, my mom was very strict in terms of money. Okay, she was the controller. So बाबा के पास जो भी सैलरी आता था, 1 तारीख को माँ के हाथ में आ जाता था, और माँ जो है देने का, जिनको देना है देती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलता था. So मैं जब पॉकेट मनी मांगता था, तो मैं जब अगर 500 रुपए मांगता था, आई यूज्ड टू गेट 100 रुपीज.
मैं कभी एक 2,000 रुपये में मुझे कहीं ट्रैवल करना था तो आई रिसीव 500 रुपीज। माँ मुझे 4 दिन ट्रैवल करने जाना है, सो आई रिसीव 500। सो वो एक बड़ा बड़ा कंट्रोल्ड मनी था उनका। सो आप देख सकते हो नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई वुड हैव बिल्ट। ओके, एनी गेसेस मेरा मेरा मनी स्टोरी क्या बिल्ट हुआ होगा? Scarcity, fear, मेरे लिए एग्जैक्टली, पैसा नहीं मेरे लिए पैसा नहीं है, लैक, ये सब। सो स्पेंड केयरफुली, ये माँ से आया है। फर्स्ट गिव अदर्स, ये मेरे पिताजी से आया है। मनी इज वेरी हार्ड टू अर्न, मेरे पिताजी से आया है। वी डोंट हैव लॉट ऑफ मनी, ये माँ से आया है। मनी इज नेवर इनफ, ये माँ से आया है। हार्ड वर्क इज द ओनली वे यू कैन अर्न मनी, ये पिताजी से आया है। आई डोंट गेट आई वॉन्ट इज माई बिलीफ। So this is my circle that got created. And I lived in this circle for more than 25 years. More than 25 years, okay, of understanding the path. अब that was part 1 of my story. अभी part 2 पे जा रहे हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, how many of you have siblings, भाई बहन है आपके? राइट है, ओके। प्रमिल, बिकॉज आपने हैंड रेस किया तो आपसे बात करता हूँ। आपने ऑब्जर्व किया है कि आप और आपके क्या भाई है बहन है, कौन है आपके? भाई भी बहन भी है। ओके ग्रेट, सो आप तीनों हो। सो आप तीनों जो है यू आर born in the same set of from the same set of parents, okay? तो परवरिश आपकी एक ही घर में हुई है, बट तीनों का नेचर इज वे डिफरेंट देन ईच अदर, राइट? कैसे? व्हाई इज इट सो कि एक ही घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, सब चीज पैसे को लेकर सब चीज सेम सुन रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग्स, ओके टुडे। तो पैसों को लेकर सब वही सुन रहे हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, ये है, सब है। बट एक बच्चा जो है, ओके, वो एक सेवर बनता है, वेरी कॉशियस हो जाता है, ही बिकम्स वेरी फियरफुल एंड अर्न्स फॉर सर्वाइवल। और वहीं पे दूसरा बच्चा जो है, ही बिकम्स अ स्पेंडर, ही इज अ रिस्क टेकर, फियरलेस बन जाता है एंड अर्न्स टू प्रूव समथिंग। एक ही फैमिली में, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? एंड प्रमिल, अगर आप देखोगे आपका नेचर आपके पेरेंट्स से बहुत अलग है, राइट? इट्स नॉट इवन मैचिंग टू वन, बट आपके भाई या बहन का किसी एक का नेचर आपके पेरेंट के साथ मिल रहा होगा। एक छोटा सा पार्ट, ओके, मे बी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है, मे बी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मनी, बट यू कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मनी, राइट? ये इतना इतना डिफरेंस क्यों होता है? एंड दैट इज वेयर दिस थिंग टू अंडरस्टैंड हैज टू बी देयर। योर स्टोरीज, जो मनी स्टोरी हमने देखा, इट विल क्रिएट योर बिलीफ। Money is hard to earn, पैसे पेड़ पे नहीं, these are beliefs. But the second aspect is your elemental personality decides how you respond to your beliefs. Okay, because वो सेम पैसे को हम वैसा नहीं देखते हैं जैसे है, हम वैसा दिखते हैं जैसे हम है। और जब हम है की बात करें, we are our elemental personality. So let us understand what is this elemental personality और elemental money personality क्या है, क्योंकि हर इंसान, हर एलिमेंट, हर पर्सनैलिटी पैसे को बहुत अलग तरीके से दिखता है। बट इसको डिकोड करने से पहले, जानने से पहले हमको डिकोड करना जरूरी है कि हमारा एलिमेंटल पर्सनैलिटी क्या है। अगेन देयर विल बी 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो भी ऑप्शन होगा, आप सिर्फ A, B, C, D या E लिख लीजिए, उतना ही रखना है। डोंट ट्राई टू कॉपी द क्वेश्चंस। Okay, so this system is coming from Tattva Bodhika. It's basically understanding people's psychology using the 5 elements. तो इसलिए तत्व बोधिका इसको नाम दिया गया है। So now let's understand the questions. When you receive money, your first thought is, let me save. किसके लिए क्या गिफ्ट ले सकता हूं? How can I grow into more? या फिर can I try something new? Or it will come and go. I'll see what happens. Question number 2 is, when you have to spend money on yourself, you hesitate, you feel guilty. I don't think twice because I've earned it. I spend impulsively and then forget about it. I delay the decisions until someone else insists I should. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, A भी है, B भी है, या फिर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा बार आप क्या करते हो उसको चूज कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट,
When you think of money, the emotion comes up is emotion. You feel you are emotional about it, excitement, freedom, uncertainty. And when you see others earning more than you quietly think that I need to work harder. I feel happy for them, but I wish I could too. I feel challenged. I must reach there. I think everyone has their own journey. And I feel it's probably meant that way. Life will balance it. Okay, fifth. Your biggest money fear is losing what I've saved, not being able to help my loved ones, being stuck or failing financially, not having enough to do what I dream of, not knowing where I'm headed financially. Sixth, when you get a bonus or extra income, okay, मैं फिक्स डिपॉजिट में या फिर आई बाय समथिंग विच इज स्टेबल लाइक गोल्ड वगैरह, ऐसा गोल्ड सिल्वर ऐसा बाय करता हूँ, या आई सेलिब्रेट विथ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई री इन्वेस्टमेंट इन माय बिजनेस और स्किल टू ग्रो, आई plan a trip or a new experience, or I will wait. I'm not sure what is the right thing to do with it. Seventh, your money decisions are usually based on security and practicality, people and emotions, return and results, interests and excitement, or circumstances or other opinions. And be extremely honest to yourself, okay? इसमें किसको prove करना नहीं है, किसको दिखाना नहीं है, only for your eyes. When financial stress comes in, I become serious and control my spending tightly. I get emotional and look for comfort from people. I get aggressive and look for quick solutions. I distract myself or try something new. I let go and trust that things will get sorted out. Okay, last two. Your idea of financial success is owning assets and being debt-free, providing comfort and happiness to loved ones, achieving wealth, status, and influence, having freedom to live on your own terms, and feeling peaceful and divinely supported. The last question is, when someone gives you financial advice, I note it down and analyze carefully. I appreciate their concern and think about it. I compare it with my plan and decide quickly. I find it interesting but may not follow through. I usually go along with what others decide. Okay, so just count the number of A's, B's, C, D, E, कितने हैं वो देख लीजिए. With that, you will be able to decode your element. Okay, what is this element and उसका characteristic क्या है वो थोड़ी देर में देखते हैं. Number of A's जो है, अगर आपका वो high है, then your dominant element is an earth element. Number of B's अगर high है, then your dominant element is water. C's जो होते हैं, the dominant element is fire. D's अगर high है, then dominant element is air. And E's अगर है, then it is ether. So जैसे तत्व बोधिका, तत्व is element, bodhika is enlightenment. So the whole idea of tattva bodhika is enlightening yourself with the information, with the insight of elements, 5 elements. अब ये जो 5 elements है, इसका अगर थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा. I was very curious about understanding people's psychology and personality. मेरी एक छोटी बहन है जो 5 साल छोटी है मुझसे, and मेरे फैमिली में I was the shyest child. Okay, my father was very confident because he was a professor. वो स्टेज पे जाना उनका नॉर्मल था, but I was very shy. And मेरी बहन जो है स्कूल टाइम में बहुत कॉन्फिडेंट थी, and she was always on stage, एलोकेशन कंपटीशन में पार्ट लेती थी, डिबेट में पार्ट लेती थी, और मैं जो है मैं किसी में पार्ट नहीं लेता, मैं पीछे रहना पसंद करता था. आई नेवर केम इन द लाइमलाइट. सो दैट वाज माय क्यूरियोसिटी. हम एक ही घर में पैदा हुए हैं, ओके, सगे भाई बहन है, बट हम इतने
अलग क्यों है, इतने मुख्तलिफ क्यों है? एंड दैट वाज माय क्यूरियोसिटी. एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आई फाउंड सो मेनी पीपल, दे आर डिफरेंट देन ईच अदर. व्हाई पीपल थिंक डिफरेंटली, व्हाई पीपल बिहेव डिफरेंटली. ये जब मेरा क्यूरियोसिटी आया, देन आई स्टार्टेड टू स्टडी ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी, एंड दैट गिव बर्थ टू तत्वबोधिका. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अभी जब हम ये पांचों एलिमेंट के कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, यू रिलेट नॉट जस्ट टू योर सेल्फ बट ऑल्सो टू अदर फैमिली मेंबर दैट यू आर लिविंग विथ. तो अर्थ एलिमेंट कैसे होते हैं? अर्थ एलिमेंट पीपल आर दे आर द प्लानर्स. दे लाइक स्ट्रक्चर. दे हेट अनसर्टेनिटी. दे हेट रिस्की इन्वेस्टमेंट. दे वांट टू सेव फर्स्ट. दे बाय इंश्योरेंस इवन फॉर इमेजिनेशन, यानी कि मैं इमेजिन ऐसा, इट्स अ फनी लाइन उसको. The biggest mistake they ever do is they oversave instead of expanding. Expansion risk में नहीं लेते हैं. They try to save a lot. Okay, so जिनका भी A's है, ज्यादा A आया है, किसने यहाँ पे लिखा है देखिए. Somebody has written here. So उनके लिए है वो. Next, जो water element है, जिनका B's आया है, they are the givers. Okay, अभी giver है, तो वो कैसे होंगे? They are emotional spenders. They give more than they have. They love making others feel good. Money is love, but money is care. And the biggest mistake they do is they give without boundaries. यानी कि वो देखते नहीं है मेरे पास कितना है, मेरे फैमिली के लिए इनफ होगा नहीं होगा. They just give away because they love to give. They are emotional spenders. How many B's in the room? Okay, Kaushik, does it relate to you? Huh? Okay, great. Now, जो C's जिनका है, that is fire personalities. Fire personality हम उनको बोलते हैं the achievers. Achievers because they are very ambitious. They want more, more, more. They are very competitive. They love fast growth. And the biggest mistake they do is they grow faster than foundation. वो foundation build करने से पहले ही वो grow करना पसंद करते हैं. That is a very high risk taking capacity. How many C's in the room? How many fires in the room? Kushali. Right? Okay, great. Now the D's, okay, the air personalities. Air personalities, we call them as explorers. Explorer क्या करते हैं? वो नया नया चीज खोजना शुरू रहता है. So they love newness. They are very impulsive. ये कुछ नया पता चल गया जाएंगे, इधर कुछ नया पता चल गया जाएंगे. So उनके लिए एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है rather than planning. उनको ठहराव पसंद नहीं है, उनको मूवमेंट बहुत पसंद है. रूल्स ट्रेन देम. ओके, ऐसा करो, ये हिसाब किताब करो, नहीं जमता है. दे आर स्पॉन्टेनियस स्पेंडर. कुछ एक नया चीज दिखा, अच्छा दिखा, दे विल बाय. एंड द बिगेस्ट मनी मिस्टेक दे डू इज दे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस विदाउट प्रिपरेशन. सो उनका सीन ये रहता है, पहले खर्च कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते रहते हैं. हाउ मेनी एयर एलिमेंट इन द रूम? या दीपक, सचिन, या परफेक्ट. एंड ईथर्स. ओके, ईथर जो होते हैं, दे आर द फॉलोअर. they are a bit confused. They regret after spending. एंजाइटी बार बार रहता है कि डिड आई चूज द राइट थिंग और नॉट. और वो बार बार लोगों से पूछते रहते हैं अपने फाइनल डिसीजन के लिए. दे इंडिपेंडेंटली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक दे डू इज दे फॉलो अदर्स rather than themselves. So they get easily influenced by other people. How many ethers? E. Okay, Pramil. Okay, great. Thank you for being honest. So now the whole idea is इसमें कौन सा सही है, कौन सा ऐसा कुछ नहीं है. ऑल एलिमेंट्स, अभी ये अगर हम अर्थ के बारे में बात करें, सारे एलिमेंट हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, वी आर थ्राइविंग. अगर सिर्फ धरती पे अगर सिर्फ अर्थ एलिमेंट होता या सिर्फ फायर एलिमेंट होता, नथिंग कुड हैव सर्वाइव्ड. सो एज द अर्थ रिक्वायर्स ऑल द 5 एलिमेंट्स, आवर बॉडी हैज ऑल द 5 एलिमेंट्स. इसमें से कोई एक एलिमेंट आपका ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो दैट बिकम्स योर हायर डोमिनेंट पर्सनैलिटी, और उसी हिसाब से आप बिहेव करते हो. सो द आइडिया इज how you are behaving in your elemental personality. So now draw another circle. आपका जो भी एलिमेंट है उससे रिलेटेड आप लिख लीजिएगा. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटर क्या बोलता है? आई लाइक टू गिव. एयर क्या बोलता है? आई लाइक फ्रीडम. आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग. आई बाय इम्पल्सिवली, ये फायर और एयर दोनों बोलते हैं. आई नीड एश्योरेंस, ये अर्थ बोलता है. आई लाइक टू हैव सपोर्ट, ये ईथर बोलता है. आई स्पेंड इमोशनली, वाटर बोलता है. आई लाइक टू हेल्प अदर्स, वाटर बोलता है. आई चेज गोल्स, फायर बोलता है. आई लाइक टू एक्सपीरियंस, एयर बोलता है. आई लाइक टू प्लान फर्स्ट, ये अर्थ बोलता है. सो नाउ ड्रॉ योर सर्कल. आपका एलिमेंटल पर्सनैलिटी के हिसाब से उस सर्कल को नाम दीजिए बी. एंड आपका एलिमेंट क्या बोलता है? ओके, यू आर अ गिवर, यू आर अ स्पेंडर, यू आर अ प्लानर, क्या है वो आप देखो.
So we call this as the voice of your nature, voice of your personality. ये आपका नेचर हो गया, ये आपका प्रकृति हो गया. So this becomes your second circle. Now the interesting part. How many air, जितने लोग air हैं उनके लिए देखो. If your parent has been an earth, जो प्लानिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं, और आप हो एयर जो स्पेंड करके बाद में सोचता है, सो दोनों का अगर मर्ज करोगे कितना कॉन्फ्लिक्टिंग होगा. ओके, कितना अलग कंडीशनिंग चल रहा होगा घर में, कितना केज फील हो रहा होगा. और सेम चीज मैं फील कर रहा था. ओके, सो द होल आइडिया इज योर स्टोरीज क्रिएट योर बिलीव्स, योर एलिमेंटल पर्सनल डिसाइड्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर बिलीव्स. We don't see money as it is, we see as we are, and we see it as per our elemental personality. Okay, now this is where let me introduce my personality. Okay, before that, this part. Your element behaves happy when everything is going well. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब स्ट्रेस नहीं होता है, चैलेंज नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, प्रेशर आता है, आप देखो आपका जो भी एलिमेंट है, आप कैसे बिहेव करते हो. सो ऑल दोज हु आर अर्थ, वो कैसे बिहेव करते हैं? दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग. एंग्जाइटी आ जाता है, फियर ऑफ लूजिंग आ जाता है, एंड दे होल्ड ऑन टू एवरीथिंग. वहीं पे वाटर क्या होता है? दे गिव टू मच, दे फील यूज्ड, अरे मुझे यूज करके चले, एंड दे फील इमोशनली एग्जॉस्टेड. ओके, पुट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज रिलेटेड टू यू, यू आर एबल टू रिलेट टू इट. जितने भी फायर है, okay, the moment they have financial stress or pressure, they get irritated, they lose temper, they lose patience, they shout, they get angry. जितने भी एयर एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर जब फाइनेंशियल प्रेशर आता है, they feel trapped, they feel suffocated, they feel restless, and they also feel guilty कि भाई I'm not able to experience, I'm not able to spend and experience new things. और जितने ईथर्स हैं, they are very unsure what to do, they avoid taking decision, they become silent. Pramil, does it match to you? Ether ka, when you get stressed out? Somehow, but not. When you get stressed out, whenever there is financial pressure. Okay, so अब देख लो, ये आपके एक्शन है, और हमने क्या सीखा था? Your emotions control your action. तो आप जैसे जैसे जिस इमोशन से गुजर रहे होंगे, वैसे ही आप आपका बिहेवियर करते हो. आपका मनी रिलेटेड बिहेवियर भी वैसा दिखाई देता है. Either you become over controlling, or you shout out, you feel exhausted, you feel unsure, or you feel trapped. कुछ भी हो सकता है. Okay, and वहीं पे okay, so how did I experience? So मेरी है एयर पर्सनैलिटी, यानी कि आप देख सकते हो कि आई एम एन एक्सप्लोरर. I am very impulsive. I buy new things. मुझे कुछ भी नया दिखा, कुछ भी ऐसा यूनिक दिखा, I buy. So उसका अगर एक्सपीरियंस बोलूंगा, I have 6 sets of just highlighters. Okay, मेरे बुक्स को हाईलाइट करने के लिए 6 सेट्स है, क्योंकि ये एक नया दिखा, ये एक नया दिखा, ऐसा. So I've got 6 sets पूरा. And हिसाब किताब रखो, ये करो, सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था. Now imagine my father was a giver. Okay, दूसरों के लिए पैसा था, मेरे लिए नहीं था. My mother was a controller, जो मुझे मनी, पॉकेट मनी नहीं देती थी. सो आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस लैक ऑफ मनी. और जैसे ही मैंने कमाना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू अर्न एट वेरी अर्ली एज, 12 ईयर्स से, बाय राइटिंग स्टोरीज इन मैगजीन्स, एंड आई स्टार्टेड टू अर्न. जैसे ही मेरा खुद का अच्छा पैसा आने लगा, आई स्टार्टेड टू स्पेंड अ लॉट, क्योंकि मुझे वो फ्रीडम महसूस हो गया. अब मेरा पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई ऑल्सो फेस लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. आई हैव मेड ब्लंडर्स. ओके, और देर के बाद हम समझेंगे. बट जो एयर पर्सनैलिटीज होंगे वो रिलेट कर पाएंगे शायद इसको, कि हमने स्पॉन्टेनियसली बहुत ज्यादा खर्चा किया है, बट वी हैव एंडेड अप फाइनेंशियल लॉस. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस एयर पर्सनैलिटी, जिनका भी एयर है यहाँ पे? राइट फातिमा? ओके, ग्रेट. यस विरल? ग्रेट. सो दिस वाज माय सेकंड सर्कल. नाउ द थर्ड सर्कल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू रहेगा. इस एंगल से हमने कभी देखा नहीं होगा लाइफ में. लाइफ, हाँ,
मुझे एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे। जैसे मेरे पैसे के बारे में सोचती हूँ नाउ, बिकॉज दिस इज आई डोंट नो सेकंड या थर्ड टाइम, या फिर तुम्हारी वजह से जितना चेंजेस हुआ है। नाउ वेन एवर द मनी इज देयर, नो गिल्ट, नो नो फियर, एवरीथिंग वो अभी नहीं है। लेकिन जब भी पैसा आता है, ऑलवेज स्पेंड फॉर पास्ट का अगर किसी को देना है, स्पेंड फॉर प्रेजेंट एंड गिव फॉर फ्यूचर, ऐसे 3 डिवाइड करके ही मेरा शांति सुख शांति रहता है। तो वो कहाँ पे मैं यहाँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड। I'll come to that. ओके Okay. So now the interesting part. Life does not care about these two things. आपका क्या मनी स्टोरी रहा है, it does not care. Okay. आपका क्या एलिमेंटल पर्सनैलिटी है, it does not care. लाइफ प्रेजेंट में रहता है, दिस प्रेजेंट मोमेंट। आपका करंट रियलिटी क्या चल रहा है और आपका करंट रियलिटी का डिमांड क्या है, सिर्फ उसी चीज पे ध्यान देता है। ओके, नाउ पास्ट सारा छोड़ दो। ओके, थोड़ी देर के लिए इरेज कर लो। आपका करंट रियलिटी ये है क्या? मुझे स्टेबिलिटी चाहिए है, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए है, मुझे पर्सनल ग्रोथ चाहिए है, मुझे फुल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने हैं, मुझे डिमांड कंप्लीट करना है जॉब का, बिजनेस का, मुझे लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, मुझे फ्रीडम एंजॉय करना है, मुझे राइजिंग एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी मैनेज करना है, आई हैव टू मीट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन एट होम, एट फैमिली, एंड आई ऑल्सो हैव लोन्स एंड EMIs टू पे ऑफ। Is this your current reality? Is this what life is demanding from you right now, currently, financially? Right? So this is your nagging voice, जो बैकग्राउंड में कंटिन्यू टिक 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 चालू रहता है ना, पैसा चाहिए, चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। So this is the nagging voice. अब name this as circle C. So take 10 seconds, draw third circle, एंड थर्ड सर्कल में आपका लाइफ आपसे क्या डिमांड कर रहा है। या तो ये सारे हो सकते हैं, या इनमें से कुछ और भी अगर है वो सारे लिख लीजिए। व्हाट इज योर लाइफ डिमांडिंग फ्रॉम यू? नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट। हमने ए देख लिया, हमने बी देख लिया, हमने सी देख लिया। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द 3 सर्कल्स इंटरसेक्ट? So you have a money story, you have your elemental personality, and you have your current reality. So ये तीनों सर्कल कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होते हैं। फर्स्ट 2 सर्कल जो इंटरसेक्ट होता है, हम उसको बोलेंगे कंडीशनिंग। सेकंड एंड थर्ड जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, हम उसको बोलते हैं पैटर्न। फर्स्ट एंड थर्ड जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वी कॉल दैट एज प्रेशर। ओके, हम ये तीनों पे आज बात नहीं करेंगे, बट ये तीनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, हम वहां पे बात करेंगे। दिस पार्ट इज द योर रियल मनी इमोशन स्टेट। और हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? जैसा इमोशंस होगा वैसा हमारा एक्शन होगा। ये सर्कल में, ये तीनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज योर रियल इमोशनल स्टेट। और ये इस जगह पे आप देख लीजिए, आपका एक मनी स्टोरी है जहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यू हैव योर सैक्रिफाइसिंग मोर देन रिसीविंग, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, लैक फीलिंग है। बट आपका पर्सनैलिटी बोल रहा है कि नहीं, इंपल्सिवली बाय करना है, ओके, स्पेंड करना है इमोशनली। ओके, और आपका करंट रियलिटी बोलता है आपके बच्चों की फीस पे करने हैं, लोन्स एंड EMIs पे ऑफ करने हैं, बस लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। अब ये तीनों में आप जिस इमोशनल स्टेट पे होंगे, लेट मी नो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस। Yes. Right? So these are your true emotional state currently. आज की तारीख का अगर इमोशंस के बारे में बात करेंगे, ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, नथिंग मोर नथिंग लेस। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था, योर इमोशंस विल कंट्रोल योर एक्शंस।
सो दीज इमोशंस आर कंट्रोलिंग एक्शन. आप देख लो, आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा बचा बचा के रख रहे हो. आप ना कितने बार बोल रहे हो, आप कंफर्टेबल कितना फील कर रहे हो, आप स्पेंडिंग के बाद गिल्ट फील कर रहे हो, पछता रहे हो, या रोज हिसाब किताब करो कि मेरे पास आज कितने पैसे बचे हैं. ओके, एंड दिस एक्शन गिव्स बर्थ टू योर रिजल्ट. अगर आप ऐसे नेगेटिव इमोशंस में होंगे, द रिजल्ट्स विल बी अनहैप्पी, स्ट्रेसफुल, इम्बैलेंस्ड, अनहैप्पी मनी. And the challenge is this imbalancement will give birth to your new money story, which you will pass on to the next generation. How many of you could see yourself in this? Was it insightful? So now you're creating a new money story, not for yourself, but आपके बच्चों के लिए. Okay, and it's coming from that intersection of the 3 points. Okay, अगर आप अपने आप को देख पा रहे हो, okay, मेरा कैसा था मैं बताता हूँ. So my story, okay, my father was a water who was a giver. My mother is an earth who is a controller, planner. तो इस वजह से there was lot of challenges about money. प्लस उसमें आया मेरा अपना एलिमेंटल स्टोरी. ओके, मुझे फ्रीडम चाहिए था, मुझे सब चाहिए था, अपने हिसाब से चाहिए था. फिर आया करंट रियलिटी, जहां पे इन्फ्लेशन है, डिमांड है, जॉब का, बिजनेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई हैव गॉट अ फैमिली टू रन एंड इस इंटरसेक्शन में ये तो सब हुआ. इस इंटरसेक्शन में आई डेवलप लॉट ऑफ गिल्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्ट्रगल ऑफ कंट्रोल वर्सेस स्पेंडिंग, रेगुलर रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, एंड आई गॉट इनटू अ बिग मेस. मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आया था, जो कुछ साल पहले मैंने गलत डिसीजन लिया था. सो यू हैव सीन हाउ आई लुक नाउ, बट देयर वाज अ टाइम इन 2011, ओके, मैं इस तरह से था. नॉट मैं तब यंग था ऐसा करके नहीं था, बिकॉज देयर वाज अ सीक्रेट बिहाइंड इट. 2011 I feel caged for not being able to experience or not being able to spend a lot of money. क्या हुआ था? My business had collapsed and I had no income source at that time. I had a lot of responsibilities. My elder daughter was 3-year-old. My wife was pregnant with the second child. There were growing expenses. We had come out of our parents' house. We were living in a rented house and a lot of situations. I made wrong financial decision and I was in a debt of 53 lakhs. Okay, remember 53 lakhs debt with no income source. I was in depression and मैंने medication start किया था. I was very unhealthy. मेरा ये भी था कि because I'm not earning and my wife is pregnant, there is a child at home. So उनको खाना कम ना पड़े करके मैं घर पे खाना नहीं खाता था. मैं तब नासिक में रहता था. नासिक में शालीमार नाम की एक जगह है, वहां पे एक बटाटा वड़ा मिलता था, बड़ा वाला. So it was around 10 rupees. So 10 रुपए का बटाटा वड़ा खाता था, जो अगले दिन 4 बजे तक मुझे सस्टेन करता था. तो नाउ इमेजिन, अगर आप वो 6 महीने ऐसा खाओगे, 6-8 महीना, सो यू विल बी वीक. सो आई वाज दैट काइंड ऑफ वीक एट दैट टाइम. ओके, स्माइल ऑफ कोर्स मेरे चेहरे से कभी गया नहीं है, बट इंटरनली आई वाज वेरी अनहेल्दी, वेरी वीक, एंड आई वाज अलोन फाइटिंग दिस जर्नी. एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार कोई सपोर्ट नहीं करने आया, वो नहीं बोल रहा हूँ. द थिंग इज, इट वाज माय जर्नी, सो आई हैड टू फाइट ऑल अलोन. एक क्या बोलते हैं, मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके नहीं था, बिकॉज यू हैव सीन माय फादर वाज गिवर, nothing was left for him. Okay, so because nothing was left, my family did not have money to pay off my debts. It was my journey, so मुझे वो कंट्रोल करना था. एंड ये सारी चीजें जो है, वो 3 सर्कल का जो इंटरसेक्शन था ना, मेरा एलिमेंटल पर्सनालिटी बोल रहा था स्पेंड कर. इसलिए मैंने कहीं ना कहीं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया, मैं बढ़िया, मैंने प्लानिंग नहीं किया, बिकॉज एयर एलिमेंट प्लानिंग नहीं करता है. मैं प्लानिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्टली कूद गया. ओके, सो मेरा एयर एलिमेंट ने वो तकलीफ दिया. प्लस करंट रियलिटी क्या है, डिमांड था, एक्सपेंसेस थे. अरे मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा तो आई विल बी एबल टू फुलफिल माय फैमिलीज ड्रीम. तो उस वजह से आई जस्ट इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस एंड कोलैप्स्ड.
एंड बिकॉज मेरा एक स्टोरी था कि यार लैक ऑफ मनी है, सो आई नीड टू एक्सपीरियंस, मुझे उससे बाहर निकलना है, उस वजह से देयर वाज अ प्रेशर ऑफ माय करंट रियलिटी, नहीं मुझे करना है, एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दिस मेस। ये सारी चीजें, सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, द होल आइडिया इज आई हैव गॉन थ्रू व्हाट यू गोइंग थ्रू। सो मुझे मालूम है क्या चीज होता है, क्या चीज से हम फील करते हैं। ओके, माय फादर हैज अ वेरी लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ, वेरी वेरी लॉन्ग इम्पैक्ट एंड वेरी स्ट्रांग ऑल्सो। मेरे पिताजी हमेशा ये बोलते थे कि पढ़ाई क्या करो, ओके अच्छा पढ़ा करो, इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन बुक्स स्टडीज वगैरह। तो यू कैन सी दिस कलेक्शन ऑफ बुक्स इज नॉट अ वॉलपेपर, इट्स अ सेल्फ ऑफ रियल बुक्स। तो ये सब मेरे फादर से आया हुआ है। तो मैं एक दिन उनके पास गया, बोले पिताजी आप हमेशा पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो, ऐसा क्या हो जाएगा? और वैसे भी मार्केट में कहावत चल रही है, लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं। ओके, दिस वाज माय कंप्लेंट टुवर्ड्स माय फादर। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं? कितने लोगों ने सुना है लक्ष्मी और सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं? यू हैव हर्ड दैट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट? ओके, दीपाली यू बिलीव इट, लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं? एग्जैक्टली। सो आई हैड दैट बिलीफ, सो आई वेंट टू माय फादर एंड आई शेयर द सेम थिंग कि भाई आप हमेशा क्यों बोलते पढ़ाई करने के लिए, लक्ष्मी और सरस्वती साथ में वैसे भी नहीं रहते हैं, तो मैं सरस्वती लेके भी मेरे पास कौन सी लक्ष्मी आने वाली है, तो बेटर है मैं लक्ष्मी के पास जाऊं, लक्ष्मी के पीछे जाऊं, मैं लक्ष्मी ज्यादा कमाऊं। मेरे पिताजी बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि वो लाइन गलत नहीं है, वो लाइन एकदम सही है। लक्ष्मी सरस्वती साथ में नहीं रहते हैं, साथ में नहीं चलते हैं, लक्ष्मी सरस्वती आगे पीछे चलते हैं। एंड बिकॉज वो एक माँ का स्वरूप है, एक माँ का रूप है, तो उनका शरीर का ढांचा सेम है। सो पीछे कोई अगर चल भी रहा है तो आगे से दिखता नहीं है कि कौन पीछे है। सो सरस्वती माँ आगे रहती है, लक्ष्मी माँ पीछे रहती है। एंड जहां पे सरस्वती को वेलकम करोगे, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। दैट मेड मी रियलाइज कि व्हाई आई हैड अ लॉस इन माय बिजनेस। मेरा बिजनेस का लॉस ये हुआ था बिकॉज somebody अप्रोच मी विद बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने लॉजिकली सोचा नहीं, मैंने सिर्फ देखा अरे मैं पैसा कमा सकता हूं, और मैं उस बिजनेस पे कूद गया। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट बिजनेस, आई हैव नेवर स्टडीड अबाउट दैट बिजनेस। मैंने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था स्टडी करने के लिए, बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्लान को, बिजनेस मॉडल को मैंने कभी स्टडी नहीं किया। मैं सिंपल कूद गया बिकॉज किसी ने बोला, मैं कूद गया। सो मैंने सरस्वती रखा नहीं है। दैट ऑल्सो मेड मी रियलाइज, आप अगर देखोगे कौन बना करोड़पति में, जितने भी लोग करोड़पति बने हैं, आफ्टर 2-3 years 5 years डाउन द लाइन, दे हैव गॉन बैक टू द सेम लेवल जहां से स्टार्ट किया था। उसमें से कितने लोग 1 करोड़ का या 5 करोड़ का, 10 करोड़ या 20 करोड़ कर पाए? नहीं है, बिकॉज इट वॉज ओनली लक्ष्मी, देयर वॉज नो सरस्वती। ऑल द लॉटरी विनर्स, जितने भी लोगों ने लॉटरी जीता हुआ है, लाखों लोगों ने जीता हुआ है, बट आफ्टर 2-3 years दे हैव गॉन बैक टू द सेम लेवल। क्यों? क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी आई थी, सरस्वती नहीं था। हाउ टू मैनेज द मनी, हाउ टू एनरोल द मनी, उनका मनी स्टोरी उन्होंने कभी चेंज नहीं किया था, उनका एलिमेंटल पर्सनैलिटी कभी समझा नहीं। करंट रियलिटी के प्रेशर में आके दे हैव जस्ट स्पेंट इट आउट। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि यार सरस्वती बहुत ज्यादा जरूरी है लक्ष्मी के लिए। मेरे पास वो सरस्वती नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी भी नहीं थी। सो जहां पे सरस्वती को वेलकम करोगे, वहां पे लक्ष्मी आएगी। एंड दैट इज वेयर माई एंटायर लाइफ चेंज्ड। हाउ आई टुक अ डिसीजन कि मुझे इस फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलना है, तो जो ये कर चुका है वही मुझे सिखा पाएगा। जैसे जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, उसका एक लाइन ऐसा है, मंजिल तक वो क्या पहुंचा है जिसने देखी राह न चल के। तो मंजिल तक वो कभी पहुंचा ही नहीं सकता जिसने देखा ही नहीं है। सो आई स्टार्टेड टू स्टडी। तब इंटरनेट 2013 की बात कर रहा हूं, मैं सर्च करना स्टार्ट किया। आई फाउंड मिस्टर बॉब प्रॉक्टर। एंड बॉब प्रॉक्टर के मैं जब रिसर्च किया, सब कुछ किया, सो आई फाउंड दैट ही वाज अर्निंग $4,000 और उनके ऊपर कर्जा था $6,000 का। कुछ एक चीज हुआ उनके लाइफ में जिस वजह से 12 महीने में $1,75,000 कमाना स्टार्ट किए। और मुझे जानना था ये कैसे हुआ, और इनसे सीखना था, क्योंकि जिसने किया हुआ है वही सिखा सकता है। सो आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माय ब्रदर इन लॉ, आई एनरोल्ड इनटू हिज कोर्स, एंड मैंने वो सीखना स्टार्ट किया, एंड आई स्टार्टेड टू चेंज। और जो जो मैंने सीखना स्टार्ट किया, तो ये तीनों सर्कल पे मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट,
जो मेरा सर्कल था, मेरा मनी स्टोरी, लैक ऑफ मनी ये है, दैट वाज माय पेरेंट्स स्टोरी नॉट माय स्टोरी, तो मैंने उसको पहले चेंज किया। सेकंड, मैंने अपने एलिमेंट को समझा, मैं समझा कि मैं एयर एलिमेंट पे हूँ, एयर एलिमेंट जो है हवा की तरह घूमते रहता है, देयर इज नो फाउंडेशन टू इट। आई अंडरस्टूड कि सिर्फ एयर एलिमेंट बन के आई कैनॉट लिव अ ग्रेट लाइफ, आई कैनॉट मैनेज माई मनी वेल, सो आई हैड टू अडेप्ट द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ताकि मैं मेरा एक बैलेंस्ड एलिमेंट बने एंड आई कैन इम्प्लीमेंट माई लाइफ। थर्ड जो करंट रियलिटी था, 53 लाख का कर्जा था, उससे भागा नहीं, उसको दौड़ा नहीं, आई डिड नॉट रन अवे फ्रॉम देयर, आई फेस्ड इट, आई यूज्ड इट एज एन इंस्पिरेशन टू फॉर माय वर्क, एंड वहां से मैं निकला। और जब मैंने ये तीनों चीजों पे न्यू सर्कल को इंप्लीमेंट किया, आई रिकवर्ड दैट लॉस इन 2.5 years। सिर्फ 2.5 साल में वो पूरा का पूरा निकाला। एंड कंसिडरिंग आई वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, ओके, वो भी चल रहा था और उसके साथ ये निकाला है। एंड इट वॉज नॉट बाय प्योर लक, मोटिवेशन, कुछ नहीं, जस्ट ये तीनों सर्कल को अलाइन करना सीखा। जब अलाइन किया मैंने, तो क्या क्या हुआ? पहला, मनी को फाइट करना छोड़ दिया, मनी को समझना स्टार्ट किया। ओके, मनी के पीछे भागना बंद किया, मनी को अटैक करना स्टार्ट किया। मैं दूसरों को कॉपी करना बंद किया, जो मेरा ओन ट्रू कोर एलिमेंट है उसको मैंने यूज किया। स्पेंड अगर हो रहा है या कुछ गलती किया है, पास्ट का कोई मिस्टेक है, तो उसको लेके गिल्टी फील नहीं किया। आई डिड वॉट एवर वॉज गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो सोच के मैंने ओवरकम किया। एंड देन आई बिफ्रेंड द मनी। ओके, मनी मनी प्रिंसिपल, जो मेरा माइंडफुल मनी वर्कशॉप भी अटेंड किए हैं, सो दे हैव लर्न द मनी प्रिंसिपल्स, तो वो सारा चीज करना स्टार्ट किया। ओके, दैट वाज ऑल बॉर्न आउट ऑफ दिस अलाइनमेंट ओनली। एंड जब ये अलाइनमेंट हुआ, तो वो फ्रेंडशिप बन गया रादर देन फियर। ओके, अब वो बड़ी आसानी से, बड़े सॉफ्टली मेरे पास आता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट चेंज्ड आफ्टर दैट अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट के बाद क्या हुआ? बिकॉज अभी सरस्वती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आई स्टार्टेड टू स्टडी अ लॉट, आई इन्वेस्ट every year 4 to 5 lakh rupees just for my own learning. Every year I learn some a new subject, I learn something new. क्या जूम से मैंने लॉग इन करो? ओके, मैंने इस पूरा स्टडी करना स्टार्ट किया, एंड आई टेक 1 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एवरी ईयर, इवन टुडे आई डू दैट। एंड प्लस जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आई स्टार्टेड टू पुट इन द बुक्स, एंड आई स्टार्टेड टू राइट बुक्स। सो मैंने पिछले साल 2024 में आई रोट 2 books, लिव इंस्पायर्ड एंड एलिमेंट्स विद इन। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर 2025 मैंने खुलजा सिमसिम ये 3rd book लिखा। एंड द गुड न्यूज इज, जस्ट टू शेयरिंग ऑल ऑफ यू, December my 2 more books are getting released, that is Tattva Katha 1 and 2, based on Tattva Bodhika only, but it's in the form of stories. So ये 2 books release हो रहे हैं December में, so it will be there in Amazon after 7th of December. So ये 2 books. So these are the things that I started to develop. Okay, अब just देखो कि just by changing a small situation, the alignment of these 3 circles changed my entire life. Okay, now here I'm sitting in front of you with a mission that I want to help 10 lakh individuals to lead a very happy, successful, prosperous and healthy life. Okay, through my coaching, through my trainings and through my books. That's the only purpose I have. I do nothing else. So you all are sitting here. So you are one part of that mission that I am holding on. So even if it's an intro session, it is just insightful. I just want to impact people's life. I want you to understand this. Now, this is where you need to understand what will happen, okay, when you don't align your story, your element and reality. क्या होगा? Any guesses? What will happen if you don't align? Stuck, lack of clarity. Absolutely. So if you wrong path, blame game, stress, absolutely. So if you are stuck, you will repeat the same mistakes, you will attack the same patterns, you will teach the same story to your children, and money becomes an emotional burden, not your partner. Absolutely, Sanand. तो इसको समझ के अलाइन करना बहुत जरूरी है। And that is where what we have done is we have created a system that will help you in both the things. Okay, आपका current reality है, बट ऊपर के 2 मेन सर्कल्स है, हम उसको अलाइन करने के लिए हम बात कर सकते हैं विथ इन टर्म्स टू द करंट रियलिटी। सो पहला जो है, वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एज द ब्रेक थ्रू वर्कशॉप, एंड द सेकंड
is the Tattva Bodhika. Secret to Breakthrough workshop जो है, it helps you change your story, your beliefs, past belief जितना भी है, उसको change करता है. So this is happening in January 2026. So obviously you need to connect with Rupa to get to know the further details. And जिस चीज के बारे में अभी हम जो सेकंड सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, that is तत्व बोधिका. तो तत्व बोधिका जो है, it's a system of understanding people's psychology using the 5 elements. तो यहाँ पे हमको हमारे एलिमेंट्स को समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर मुझे मेरा पैटर्न मालूम है, मेरा थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर का पैटर्न मालूम है, आई कैन मैनेज माई सेल्फ बेटर. इफ आई अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, आई कैन मैनेज देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, देयर बिहेवियर पैटर्न्स ऑल्सो. ओके, अब मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छा हो सकता है, मेरा उनको समझना अच्छा हो सकता है. इट बिकम्स एवरीथिंग वेरी इजी. नाउ देयर आर फ्यू रिजल्ट दैट आई वांट टू शो कि कुछ लोगों ने जब ये दोनों अलाइन किया तो क्या रिजल्ट आया. सो ब्रेक थ्रू वर्कशॉप जब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया है. आई जस्ट शेयर ममता. सो ममता जो है वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ कौशिक एंड बसन्ना एंड टू मेनी पीपल ऑल्सो हियर इन द रूम. ममता जो है 2020 में, ओके, फर्स्ट टाइम द फर्स्ट वर्कशॉप शी अटेंडेड वाज द ब्रेक थ्रू वर्कशॉप. तो जब वो अटेंड की थी, शी कम्स फ्रॉम इंश्योरेंस, आई मीन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, म्यूचुअल फंड एडवाइजर है. And she had an AUM of 15 lakh rupees at that time. Last July, वो मुझे मैसेज भेजती है, ग्रुप में मैसेज भेजती है rather, और वो भेजती हैं, okay, now imagine, last year was 2024, okay, in just 4 years, she has increased her AUM to 60 crores rupees. ये मैसेज है, उस मैसेज को मैंने टाइप कर लिया इधर. okay, ये लास्ट जुलाई का है. This July, when we met, she had come to Pune. We had met for lunch, and she says, now it is 79 crores. So just 5 years में आप देख सकते हो, 15 लाख से it is 79 crores. And she has aligned her elements and she has aligned her money story. Now, few people who have aligned their life, their story, element का story. So one of the participants closed a deal of very great business personality from Pune. There is another participant who closed a deal of 3.78 lakhs on the third day of learning the science. Another participant closed a deal of 11.21 lakhs in just 45 minutes of interaction. And another participant, just after learning, they closed a deal of 3.07 crores. ये हो गया मेरे participants का. Do we have a financial growth? Yes. एक और पार्टिसिपेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने जब तत्व बुद्धि का किया था, their organization, उनका सेल्स टीम के लिए क्या था, they recently last week they closed a deal of 83 crores. That was one deal was 83 crores. And have we also grown? Yes. अगर when we do it for some workshop for the organization, just 2 days का billing was 2.5 lakhs. Okay, so we have also grown financially. So these are different organizations where we have trained. ये सारी जगह पे हमने ट्रेन किया हुआ है. More than 7,800 लोगों ने इसको सीखा हुआ है. Okay, so there's a participant recently last month, अगस्त महीने में इन्होंने अटेंड किया था. Now we will handle persons, not the employees. Wow, thank you. So this is a very beautiful aspect which has come out of these trainings, and as Sandeep has rightly said, your energy, and it is very positive. And the 2 days, I think today 11 hours, maybe, and yesterday 22 hours. Yes. I mean, I can say it is not a joke to deliver such kind of long sessions. I have never seen any kind of speaker has delivered such long sessions to anybody. I'm part of it. I'm happy for it, and thank you very much to the management and to you for providing such an excellent opportunity. Oh, वॉइस स्लो होगा, आप YouTube में देख सकते हो. But the thing is, they learned, and उन्होंने स्टार्टिंग में लाइन बोला, now we will handle people, not the employees. तो जब उनके एलिमेंट समझ में आते हैं, उनके इमोशन समझ में आ जाते हैं, and we will be able to deal with them much more effectively. Now we will handle. Okay, so your benefits when you learn this system is it is one-time investment and one-time learning.
ये मतलब लेवल 1 लेवल 2 ऐसा कुछ भी नहीं है, इट जस्ट 1 level only. You can use this science to communicate with any person across the globe. If you are dealing with people across the globe, then you can use it easily. We have participants from Dubai, from Netherlands, from Norway. We have participants from UK, US, Australia, Singapore, Sri Lanka. Okay, सब तरफ से हैं. It's very effortless to use, and you have seen that. It will make you very confident, very popular in while dealing with people, and it's a very unique and profound science to grow into the best version of yourself. Now think over. If nothing changes in your inner world, will your outer world change? No, right? So in the entire program, you will discover the language of each element. Okay, यानी उनका thinking language जब मैं बोल रहा हूँ, उनका thinking, feeling and behavior pattern पूरा. You'll understand their key aspects like aspiration, patterns, belief, preferences, stress factors, सब भी पता चलता है. You will learn how to bond well. If you have a problem with communicating with a stranger, आराम से कर सकते हो. You understand the behavior pattern. You understand how to adapt the best of the other elements to align your core. Emotional triggers क्या क्या हैं and how to handle the emotional triggers. ये सारी और बहुत सारी चीजें हम उसमें कवर अप करते हैं. Okay, and this is happening on 14th of December. It is happening in person. After I'm doing this after a year. ये 1 या 1.5 साल के बाद मैं कर रहा हूँ. मैं अब तक ऑनलाइन कर रहा था, बट ये इन पर्सन हो रहा है, इन पुणे हो रहा है. So all the people who can attend do attend, and the investment will be 7618. रूपा चैट में वो लिंक डाल देगी. ओके, आपको वो सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा. प्लस इफ एनीबडी एनरोल्स, आई मीन इसके लिए एनरोल करते हैं इफ टुनाइट, देन यू विल गेट द एलिमेंट्स विद इन द बुक. जो मेरा बुक है, यू विल गेट दैट फ्री. ओके, वर्कशॉप के दिन आपको वो मिल जाएगा. एंड द क्वेश्चन इज, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? Okay. Last gift from our side is you can just take a screenshot of this slide. Okay, इसको स्कैन करेंगे. So there is a set of 15 questions. तो उसमें भी आपको एलिमेंट्स का मौका मिलता है. So you can give it to your family members also. You can ask them to write authentic answer, and towards the end, self-generated report आ जाएगा about the element of that person. So it's a small gift from our side, and this is all I wanted to share at this point of time. Anything, any question? Now I have got time to solve. Yes, thank you. Thank you so much, Prantik, for the lovely introduction and beautiful session. ये मैं खुद ही बोलती हूँ because ये मेरे actually कुछ workshops प्रांतिक के ऐसे हैं जो सच में दिल के करीब हैं, and I have attended this with my family, with my son, with my husband. हम तीनों ने अटेंड किया था, और आज हम एलिमेंटल ही बात करते रहते हैं. तो वाटर ये ऐसे ही करेगी, तुम और तो ये सब चलता रहता है. तो that's a fun part, but it's also the best part is you understand self. हम खुद को ही कभी कभी समझ नहीं पाते हैं. हम खुद को हमेशा ना, मेरे साथ ये बहुत हुआ था कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्यों मैं ना नहीं बोल सकती हूँ, क्यों लोग आके मेरे पास आके अपने सारे सीक्रेट्स बता जाते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे. So understanding self was very important. So this was an eye opener. This workshop was an eye opener for me. And when you attend as a family, also it helps you to align yourself, to understand others, to deal with other people also. So ये ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद हम इन पर्सन इन पुणे में कर रहे हैं. तो प्लीज अटेंड कीजिएगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप पुणे के बाहर हैं तो आप कैसे अटेंड करेंगे. ट्रस्ट मी, वी हैड पीपल फ्रॉम दुबई, वी हैड पीपल फ्रॉम पंजाब. The one who attended from Dubai is already sitting here, though she attended a different workshop, but people attend because it's a life change thing. और वो आप एक बार अटेंड करोगे, it's like a lifetime के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है. And people who want to repeat also, या कोई challenges हैं आपको पुणे में अटेंड करने के लिए, तो प्लीज मुझे रीच आउट कीजिएगा, so I can help you out for the same. Now we are open for the questions. Yes, Rupali, go ahead. Yeah, first of all, thank you so much for this wonderful session. बहुत सारा रिवीजन हुआ. एंड मैं यहाँ पे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि ब्रेक थ्रू के बाद सच में ब्रेक थ्रू होता है.
एंड मेरा टर्नओवर ईयरली कैसे तो भी 10 lakhs होता था, उसमें से एक्सपेंसेस निकल के हाथ में बहुत कम आता था। एंड आफ्टर अटेंडिंग पर्सनल मेंटरिंग सेशंस एंड वेक थ्रू 2 बार, क्योंकि वन विद द फैमिली एंड वन विद माई सेल्फ, मेरा वो डबल हो गया। एंड नाउ द पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स बिजनेस, द मनी, पीपल, एवरीथिंग हैज चेंज। तो आज जब अटेंड करो ना, आई कैन अंडरस्टैंड अरे मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। सो आई नो देर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, बट इट इज अ वंडरफुल वर्कशॉप एंड आई मस्ट से एवरीवन शुड अटेन एंड इम्प्लीमेंट स्लोली, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो लर्निंग सीखी, लेकिन वो स्लोली इम्प्लीमेंट किया। बट आई एम हैप्पी विद दैट। एंड जैसे अभी रूपा मैम ने बोला ना, वैसे फैमिली के साथ अटेंड करते तो अभी हम ना बात भी वैसे ही करते, तू मेरे एलिफेंट को ऐसे मत कर, या फिर मेरा ये ऐसा है। सो जो एलिमेंट वाला है, अगेन आई वांट टू अटेंड दैट, बिकॉज दैट इज इजी टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड विद द फैमिली। सो बहुत, रूपा रिमेम्बर कैसे मैंने ओजस कौर को खींच के लाया था सेशन में, बट Yes. एटलीस्ट व्हेन दे टॉक ना कि तू ऐसे कर रही है, प्रांति को बताऊंगा, तो समझ में आता है कि वो रिलेट तो कर रहे कम से कम। सो इट इज वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच, दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू रूपाली। ये शाहनवाज जी। Is this session going on online, ma'am? और फिलहाल ये इन पर्सन हो रहा है, ऑनलाइन नहीं रहेगा, लेकिन जब भी ऑनलाइन रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन फिलहाल ये इन पर्सन है, 14 दिसंबर। जिन जिन को ऑनलाइन अटेंड करना है, रूपा जस्ट पुट योर नंबर इन द सो रूपा का कांटेक्ट कर लीजिए। सो ऑल दोस पीपल हु वांट टू अटेंड ऑनलाइन एंड यू आर नॉट इन पुणे और यू आर नॉट एबल टू अटेंड इन पुणे, जो लिख लीजिए। सो इफ देयर आर सर्टेन नंबर, वी विल अनाउंस अ डेट फॉर ऑनलाइन यस आफ्टर 14th। जी दीपाली जी। हाय प्रांतिक, हाय जी रूपा। तो वंडरफुल सेशन, मैंने आपका ब्रेक थ्रू भी किया हुआ है एंड देयर बीन लॉट ऑफ चेंजेस सिंस देन। और मैंने ये टेस्ट दिया था आपका, जो एलिमेंट्स का टेस्ट है, काफी मंथ पहले। दैट टाइम इट वाज अर्थ एलिमेंट, यस और अब जब मैं कर रही हूँ ये टेस्ट तो आई एम फायर एलिमेंट। यस ओके, तो यस देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन मी। तो ऐसा होता है, एलिमेंट्स चेंज होते हैं। तो एज यू स्टार्ट टू ग्रो, ओके, यस अर्थ का आपका पहले था यू आर अ प्लानर, ओके, सब यस कुछ सेफ्टी प्लानिंग, यस ओके, सब कुछ था। तो नाउ व्हेन यू एक्सपैंडेड योरसेल्फ, ओके, सो यू अडेप्टेड द फायर क्वालिटीज। वही मैंने बोला कि ओनली वन एलिमेंट इज नॉट गोइंग टू सर्व, यू हैव टू अडेप्ट द बेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स। सो आज जो है, नाउ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ फायर, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस आल्सो। जो यस पहले सिर्फ एक ही सिटी में था, नाउ इट हैज एक्सपैंड टू 2 or 3 cities। दैट एक्सपेंशन इज द फायर एलिमेंट। सो यस, you या evolved. Beautiful. Prantik, जी is it possible that a person can have two elements together? Miss, अभी मेरा जो A B C yeah. D देखा तो दोनों में सेम है मिस। एक Earth and water, एयर एंड वाटर। air and water. Okay. हाँ Uh, so we have all the 5 elements. One of them will be dominant. So now you think, भले आपका स्कोरिंग आया, बिकॉज इट वाज जस्ट अ स्मॉल या जेनरिक टेस्ट। उसमें आप जस्ट देखो, आप बहुत ज्यादा वाटर हो कि एयर हो। इफ यू आस्क मी, देन इट विल बी मोर ऑफ वाटर, मोर ऑफ वाटर एंड लेस ऑफ एयर, मतलब सेकंड विल बी एयर। जी उमेंद्र जी। सर ये जो तत्व है, एक आयुर्वेदिक बेस पे भी होती है ना, प्रकृति, व्यक्ति की जी जी, वात पित्त और तत्व, वो भी ये भी उसी का बेस लेके क्या है। जी जी सर, ठीक। हाँ, so मेरा ये हमेशा था कि जब भी हम पर्सनैलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्रेडिट हमेशा वेस्टर्न साइंटिस्ट को दिया जाता था। और जी हमारे सर। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया इस साइंस में भी, बट हमारे शब्द होते थे प्रकृति और स्वभाव, ओके, और प्रकृतिवाद, प्रकृति पित्त, प्रकृति, वैसा सब होता था। सो उसी चीज को मैंने जब स्टडी किया, तो ये हमारे बिहेवियर में, हमारे विचारों में भी कैसे फर्क लाता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है, उसी पर मैंने ये तत्वबोधि का डिजाइन किया। सर आपने डेट डिसाइड कर दी, वेन्यू शायद नहीं हुआ डिसाइड अभी ना? हाँ, वेन्यू नहीं है, वेन्यू अभी इस कमिंग वीक में हो जाएगा। ठीक है ना सर, डेट है, ज्वाइन करेंगे। पक्का जी, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन किसी का? प्रांतिक जी, हम्म, नीलेश जी। यप। तो इसके जो अभी क्वेश्चन हुआ उसमें मेरा एयर एलिमेंट आया।
you're trying to expand ना. तुम वैरायटी चीजें कर रहा है. तुम पहले जिस जिस प्रकार का वेबसाइट कर रहा था, अभी एक नए इसमें चला गया. तुम बीच में अगर तुम देखे, तुमने 2-3 नए एप्लीकेशन स्टार्ट किए. Yes. So you're evolving. Okay. And second one is a fire. You have to grow, na? Okay. Yeah. Thank you. Thank you, ji. Okay, so that was all. प्रमिल जी कुछ पूछना था? हाँ सर, बिल्कुल जी सर। प्लीज. ये जो मेरा जो ईथर वाला जो पार्ट था, वो जी. मैंने अपनी जो लास्ट जो हिस्ट्री जो थी, जिस बैकग्राउंड से, या जो मैंने कुछ ब्लंडर किए थे, जो भी किया था, मैंने उसके बेस पे लिखा था. बट अभी मैं जो फ्यूचर या अभी करंट सिचुएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफी चेंज आ रहा है. चेंज किया मैंने बट कुछ पॉइंट्स पे, और उसको चेंज कर रहा हूँ. तो वो भी मेरा मिक्स है. बट जो मैंने आंसर जो किए थे, वो मोस्टली मेरे एक पार्ट से, जो मैं आप जो बोल रहे हो लक्ष्मी जी, मेरे पास लक्ष्मी जी बहुत आई थी, जिसको मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे इसको करना है, क्योंकि मेरे पास सरस्वती जी नहीं थी. हाउ टू बैलेंस और हाउ टू, सारे चीज नहीं थी. बट अब मैं उसको देख रहा हूँ, अब उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो कुछ इम्प्रूवमेंट है. यस. सो ईथर स्टेट जब आता है, जब आप एकदम कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं. सो पास्ट में जैसे आपने बोला लक्ष्मी नहीं थी, तो पैसा आने का करेंगे क्या. सो आपको कंफ्यूज स्टेट में आपका ईथर वो बराबर आया है. अब जो है करंट रियलिटी के हिसाब से आप बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ईथर बन के काम नहीं चलने वाला है मेरा. अभी नॉलेज लेना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा उससे. तो दैट इज द होल आइडिया कि अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन लेते हो अपने बारे में, तभी जाके इवॉल्व हो पाओगे ना. That was the whole idea. So आपको ये भी समझ, जैसा अभी दीपाली जी ने बोला कि उनका पहले ओरिजिनल अर्थ एलिमेंट था. अब जब वो एक्सपैंड कर रही है, उन्होंने ब्रेक थ्रू भी किया, उन्होंने अभी ये भी एलिमेंट्स भी जब किया, तो जब उनका अर्थ एलिमेंट आया, तो वो उनको स्टैग्नेट रखता था, उनको कंट्रोल रखता था. बट उनको फायर अडेप्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से उनका काफी सालों से इच्छा था कि मुझे 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस करने मेरे ऑफिस के. बट जब तक उन्होंने फायर को अडेप्ट नहीं किया, वो एक्सपैंड नहीं कर पाए. तो इसलिए आपको ये समझना है कि मेरा तत्व क्या है, दूसरे तत्व कैसे अडेप्ट करने हैं, और दूसरे तत्वों का बेस्ट कैसे अडेप्ट करना है और कैसे ग्रो करना है. दैट इज द एंटायर थिंग दैट वी हैव टू डू. टीटू भैया 5 मिनट लगा रहा हूँ, क्लास चल रहा है. हेलो. जी सर, सॉरी, मैं बोलूं सर? अच्छा, बोल दीजिए. सर, ये क्या पैसा मतलब फायर एलिमेंट है क्या? नहीं. फायर एलिमेंट का गुण है ग्रोथ का. अच्छा. तो अगर मुझे एज एन एयर भी, अगर मुझे ग्रो करना है, तो मेरे अंदर फायर तत्व को जगाना पड़ेगा. सिर्फ एयर तत्व से काम नहीं चलेगा, वो है. तो सर, काम टालना, पेंडिंग, मतलब इतना पेंडिंग करना कि नाक तक आ जाए, फिर बोले यार अब क्या करेंगे, डूब मर जाओ. तो मतलब इतना टालना सर, ये क्या वाटर का गुण है? पेंडिंग. वाटर. तो मतलब सर, मतलब जैसे महावास्तु बोलते हैं फायर मतलब पैसा, तो पैसा सभी तत्वों के पास में है. ऐसा सभी तत्वों के पास है, लेकिन उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. ओके, वाटर को अगर अगर मैंने ये ग्लास में नहीं रखा और सिर्फ ऐसा जमीन पे रखा, वो तो फैलेगा ना. मैं पी कब पाऊंगा? मुझे किसी एक आकार में डालना पड़ेगा, तभी जाके मैं पी पाऊंगा ना. एग्जैक्ट सर, जो आप बता रहे हैं ना, वो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहा था. तो जो सुअर वर्ष वाले होते हैं ना, पिग वर्ष वाले, वो सबसे रईस अरब खरबपति मिलते हैं, जबकि सबसे बेकार होते हैं सुअर को. तो मतलब सभी तत्वों के पास पैसा है. सभी तत्वों के पास पैसा है, चैनलाइज करना सीखना जरूरी है. एंड उसको कैसे चैनलाइज करना, वो तभी होगा जब आप आपके तत्वों के सारे गुण क्यों ऐसा आप हो, कहाँ से वो आया है और कैसे डेवलप कर सकते हो, वो सीखना जरूरी है. चलिए ठीक सर, सॉरी बीच में मैंने इंटरप्ट किया सर को. नो प्रॉब्लम. थैंक यू जी. कौशिक. या अभी ये जब सरस्वती और लक्ष्मी की बात हो रही थी ना, सो आई वाज जस्ट रिलेटिंग थी कि मैं सीए क्वालिफाई हो चुका. ओके, 12 साल प्रैक्टिस किया, सरस्वती थी, but still I did not get that much of money, or I did not earn that much of money that which was required. But अभी इसके बाद जब बाहर निकला हूँ, I could see I did not enjoy what I was doing. Okay, now अभी मैं जो प्रोफेशन में आया हूँ, जहाँ पे ये वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा हूँ, I am enjoying what I am doing and I am getting to learn more of it. And जो 10 साल के बाद कमा रहा, तो आज मैं 5 साल में कमा रहा हूँ. So उसका लिंकेज कैसा है मिस?
हाउ डू वी से कि सरस्वती तो थी बट लक्ष्मी क्यों नहीं थी तभी? हमारे मैथमेटिक्स में हमको वेन डायग्राम सिखाया जाता था. यू रिमेम्बर कौशिक जी? डोंट पॉसिबल हो गया. दो सर्कल ऐसे जब जुड़ते इंटरसेक्ट होता है तो वेन डायग्राम हाँ होता है. हाँ ओके. हाँ. अगर आप ध्यान दोगे, सो व्हाट डिड आई डू? दिस इज माय वेन डायग्राम ना. So I've used mathematics in my presentation. Okay. Now intersect जब होता है तो it is not just intersecting at one level, it is intersecting at 3 levels. तो तीनों intersection क्या हो सकता है वो सब. So I've used the mathematics, I've used the logic which computer science में सीखा है, उसी को मैंने यूज किया यहाँ पे. So आपकी सरस्वती कभी वेस्ट नहीं होती है. So अगर आप ध्यान दोगे, आप म्यूचुअल फंड तभी अच्छा बेच पा रहे हो जब आप अपना सीए का नॉलेज वहां पे यूज कर पा रहे हो. ओके. आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द सीए एजुकेशन विच इज हेल्पिंग योर म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स. ट्रू ट्रू एग्जैक्टली. जो ट्रस्ट 50% ट्रस्ट तो वहीं पे आ गया. राइट. सो सरस्वती है तो तभी तो लक्ष्मी आ रही है. हाँ बट जब भी सीए प्रैक्टिस कर रहा था तभी वो नहीं हो रहा था. नहीं होगा आई डोंट नो. ओके. बिकॉज आपने खुद ने बोला आप एंजॉय नहीं कर रहे थे बिकॉज इट वाज नॉट अलाइंड विथ योर मनी स्टोरी. हाँ लगा कि दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी नाउ ऐसा लग रहा था. ओके थैंक यू. इट इज नॉट योर मनी स्टोरी ना. या इट वाज कंडीशनिंग. जी वेदांत. हेलो सर, आई जस्ट वांटेड टू से बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि जब भी आपके सेशन अटेंड किए ना, माय लाइफ एंड माय थिंकिंग हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. सो ट्वाइस व्हेन यू डिड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, अमूल सर ऑर्गेनाइजेशन, तभी जो चेंजेस आए टुडे, जो आपने वो रेड डायग्राम दिखाया था ना, सबसे रिलेट हो रहा था. एंड थैंक यू सो मच. उसकी वजह से बहुत सारा इंसाइट्स मिला एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 14 December. सो थैंक यू सो मच. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you. Great. Yes, Deepak ji, have a question? Deepak Ashwani ji. Yes. Okay, you're pointing towards me. Yeah. No, I don't have a question, but definitely many thanks, and I can correlate. I also do conduct workshops on money. Mhm. I'm a transformation course, so I try to cover starting with relation with self, and then with partner, and then money. So the steps that I cover, I can definitely correlate that those are exactly overlapping with the water, air, element. So unconsciously the language is different, but somehow it's all correlated. So, and ultimately the message is that the change happens within. So many many Absolutely. many thanks for the workshop, and beautifully put it, beautifully, very well done. Many thanks. Thank you. Thank you so much. And if you like the elements wala aspect, then connect with Rupa. We can certify you for this science. Can you tell me more about it? What does it mean to certify? Like there That is means something becoming a participant, but what does it mean becoming a certified? the thing is you can become like I'm the creator, so I can train you for teaching the science to your people. Okay. So we'll certify. We will get the train the trainer certification. That's what I'm talking about. Okay. Thank you. Please share more details about that. Yeah. Surely. Yeah, I'll ask Rupa to connect with you. Surely, Deepak. Yes, I Neetu. had just one last part of it. Immense gratitude to you and Prantik sir, because I've been attending this from quite some time, and the energy within the session has always remained the same kind of passion, and it's only made me grow further and further, helping me handling everything that I do with my family and my work. Thank you for all that you're doing. Trust me, every time I attend your session, it's 100 times, booming me with energy to come back to life and do things so differently. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you so much, Neetu. All right. If you have any questions, you can connect with me directly. You all have my WhatsApp number also. Also, you will be receiving the registration link to register
by tonight, if you register, you will be also getting the book in the main workshop, which will be giving you. And yes, if you have any challenge and repeat, and anybody who wants to repeat also, please connect with me. You have a special prize for the repeaters. Yeah. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye-bye. Have a lovely Sunday. Bye-bye. Thank you. Take care. Bye bye. Good Thank day. you. Bye-bye.